بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے BISP یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی حقیقت پر، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان میں غربت کیوں بڑھ رہی ہے اور آپ کو کسی بھی افواہ یا غلط اطلاع سے کیسے بچنا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں ایک رپورٹ منظر عام پر آئی ہے جسے ورلڈ بینک نے جاری کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کی شرح میں اضافہ دکھایا گیا ہے۔ یہ تعداد سن کر دل دکھی ہو جاتا ہے، تقریباً 45% تک، یعنی ملک میں لگ بھگ 11 کروڑ افراد ایسے ہیں جو غریبی کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت نہایت دردناک ہے۔ یہ افراد وہ ہیں جو روزگار کے لیے دوڑتے ہیں، جن کے بچے اسکول کی بجائے مزدوری کرتے ہیں، اور وہ مائیں جو کسی صورت اپنے بچوں کو باورچی خانے میں نہ دیکھ سکیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے عرصے سے موجود امدادی اداروں اور پروگراموں کے باوجود غربت کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ کیا BISP ناکام ہو گیا؟ کیا یہ پروگرام بے مقصد ہے؟ ناظرین، اس سوال کا جواب ایک سادہ مگر اہم فرق بتاتا ہے۔ BISP کا مقصد غربت ختم کرنا نہیں، بلکہ غربت کے اثرات کم کرنا ہے۔ BISP ایک امدادی پروگرام ہے۔ اس کا کام مستحق خاندانوں کو وقتی مالی امداد پہنچانا ہے تاکہ روزمرہ کے اخراجات کچھ آسان ہوں۔ BISP کسی کو دولت مند نہیں بناتا۔ BISP محض ایک تحفظی جال ہے جو خاندانوں کو بھوک کے گڑھے سے نکال کر استحکام فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کی حقیقی آمدنی بڑھانی ہے تو وہ کام حکومت کی اقتصادی پالیسیز، روزگار کے منصوبے اور تعلیم ہی کریں گے۔ یہ جو اصل کام ہے وہ مختلف محکموں کی ذمہ داری ہے۔ اب ایک عام مثال سے بات آسان کر دیتا ہوں۔ فرض کرے کسی گھر کا ماہانہ خرچہ 29,000 روپے ہے اور گھرانے کی آمدنی 25,000 روپے ہے۔ ایسی صورت میں گھر کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ BISP وہاں آ کر 4 یا 5,000 روپے سے توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ 4 یا 5,000 روپے کسی کو امیر نہیں بناتے، مگر وہ فرق پیدا کرتے ہیں کہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ اسی لیے BISP کو صرف غربت ختم کرنے والا ادارہ سمجھنا درست نہیں، بلکہ اسے بحالی اور سہارا فراہم کرنے والا ادارہ سمجھیں۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم نقطے کی طرف۔ سوشل میڈیا اور خبروں میں ایک سازش جیسی افواہ گردش کر رہی ہے کہ BISP کو بند کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد BISP ختم کر کے صوبوں کو دے دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر بہت سے مستحق خواتین پریشان ہو گئیں۔ آئیے حقیقت جانتے ہیں۔ فی الوقت BISP بند ہونے والا نہیں، نہ ہی کسی مجوزہ قانون نے ایسا واضح کیا ہے کہ فوراً BISP ختم کر دی جائے۔ حکومت وقتاً فوقتاً پالیسیاں اور اختیارات کا جائزہ لیتی ہے، مگر فوری طور پہ کوئی ایسا فیصلہ جاری نہیں ہوا جس سے 1 کروڑ سے زائد مستحق خاندان متاثر ہوں۔ لہٰذا جب بھی آپ کو ایسی خبریں ملیں تو پہلے منطقی انداز سے چیک کریں، کیا یہ خبر سرکاری ذرائع سے آئی ہے؟ کیا BISP کی ویب سائٹ یا آفیشیل ہیلپ لائن نے اس کی تصدیق کی ہے؟ اگر نہیں تو اس خبر پر یقین کرنے سے پہلے رک جائیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جو اس پورے معاملے کی تصویر واضح کرتی ہے۔ یہ کہانی برصغیر کے زمانے کی ہے جب انگریز یہاں حکومت کرتے تھے۔ وہاں سانپوں کی ایسی وبا تھی، خاص طور پر کوبرا۔ انگریز نے ان سانپوں کے خاتمے کے لیے ایک انعامی پروگرام شروع کیا کہ جو شخص کوبرا مارے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ابتدا میں یہ بہت مؤثر لگا، لوگ سانپ مارنے لگے اور انعام لینے لگے، لیکن جلد ہی ایک عجیب صورتحال سامنے آئی۔ لوگ کوبرا کو گھر میں پالنے لگے، پھر مار کر انعام حاصل کرتے۔ یوں انعامی اسکیم نے مسئلے کو بڑھا دیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ جب حکومتی پالیسیاں آسان عزائم کے ساتھ مرتب ہوں مگر ان کے منفی نتائج کے امکان کو نہ دیکھیں تو نظام میں ایسے نقص نکل آتے ہیں جو اصل مسئلے کو بڑھا دیں۔ اسی طرح ہمارے معاشی فیصلے اور پالیسیاں بعض اوقات مسئلے کو جڑ سے حل نہیں کرتی بلکہ عارضی طور پر منافع دیتی ہیں۔ غربت کا خاتمہ محض رقم دینے سے ممکن نہیں، بلکہ روزگار، تعلیم، صحت اور بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی سے ہی ممکن ہے۔ اب ناظرین، BISP نے چند سالوں میں بہت سے نئے اقدامات کیے ہیں تاکہ امداد زیادہ شفاف اور مؤثر ہو۔ ان میں سب سے اہم اقدام ڈیجیٹلائزیشن ہے۔ اب رقم ڈیجیٹل والٹ یا مخصوص موبائل سمز کے ذریعے بھیجی جا سکتی ہے تاکہ نقدی چوری یا کٹوتی کا امکان کم ہو۔ یہ تبدیلی بڑی مددگار ہے مگر اس کے ساتھ چند عملی تقاضے بھی آئے ہیں۔ مثلاً آپ کے شناختی کارڈ پر زیادہ سمز رجسٹرڈ ہو سکتی ہیں، یا آپ کے بائیومیٹرک
डेटा में मसला हो सकता है। इसीलिए BISP ने हिदायत जारी किए हैं कि कौन सा शख्स कहाँ जाए और किस तरह अपने मसले को हल करवाए। एक आसान तरीका ये है, आप अपने मोबाइल से अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को बग़ैर डैश के लिखकर 668 पर भेजें। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपके नाम पर कितनी सिम्स रजिस्टर्ड है। अगर 5 सिम्स पहले ही रजिस्टर्ड हैं तो नई सिम लेने में दिक्कत हो सकती है। इस सूरत में आप पहले मतरूक सिम को डिसऑन करवाएं। ये छोटा सा कदम आपके लिए बड़ी आसानी पैदा कर सकता है जब डिजिटल वॉल्ट का निज़ाम मुकम्मल होकर आप तक पहुँचे। अब आते हैं डायनामिक सर्वे की तरफ। यह सर्वे एक अहम कदम है ताकि BISP का डेटा दुरुस्त और अप टू डेट रहे। पुराना सर्वे जहां कई जगह नामुकम्मल या गलत डेटा की वजह से लोगों को पिछले रकूम नहीं मिल पाए, वहां नया डायनामिक सर्वे घर घर जाकर मालूमात इकट्ठी करता है। इसका फ़ायदा यह है कि जो लोग पहले गैर अहल थे मगर उनके हालात बदल गए हैं, मसलन घराने की आमदन कम हुई या कोई फौत हो गया, वो दोबारा अहल बन सकते हैं। इसी तरह जो लोग गलत तौर पर अहल दिखाए गए थे उनका डेटा भी दुरुस्त हो सकेगा। नाज़रीन किराम, अब बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरी किस्त कब आएगी, या अगर मेरी किस्त रुकी हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब यह है, सब्र के साथ दर्ज झेल इक़दामात करें। सबसे पहले अपने नज़दीकी BISP मरकज़ पर जाएं और अपना CNIC लेकर रुजू करें। दूसरा, आप BISP हेल्पलाइन पर कॉल करके भी सूरत हाल जान सकते हैं। तीसरा, अगर बायोमेट्रिक या शनाख्ती कार्ड का मसला है तो नादरा के दफ्तर जाकर अपडेट करवाएं। ये छोटे छोटे इक़दामात आपकी रकम वसूल करने के वक्त बड़े फ़र्क डाल सकते हैं। अब नाज़रीन, आइए मैं आपको बताऊं कि BISP की रकम मरहलावार कैसे जारी की जाती है। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अदायगियाँ मुख्तलिफ मरहलों में की जाएंगी ताकि किसी एक जगह रश ना हो। ये मरहलावार निज़ाम ख़ास तौर पर उन इलाक़ों में मुअस्सिर है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर महदूद है। इसी के साथ एक नया कदम ये भी है कि BISP सिर्फ पैसा देने तक महदूद नहीं रहेगा। आइंदा उन्हीं डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए तालीमी वज़ाइफ, न्यूट्रिशन प्रोग्राम और दीगर फ़िलाही रकूम भी इसी वॉलेट में मुंतकिल की जा सकेंगी। ये तब्दीली अगर सही तरीके से नाफिज हुई तो ख़वातीन को ये सहूलत मिलेगी कि वो घर बैठे पैसे निकाल सकें, बिल अदा कर सकें या बच्चों की फ़ीस अदा कर सकें। अब नाज़रीन, मैं आपको कुछ अमली एप्स दे रहा हूँ जो आप फ़ौरन कर सकते हैं ताकि जब ये निज़ाम आपके इलाके में आए तो आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। पहला कदम, अपने CNIC की मुद्दत देख लें। अगर ख़त्म हो चुकी है तो फ़ौरन नादरा जाए और तजदीद करवाएं। दूसरा कदम, अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स मालूम करें। 668 पर पैगाम भेजकर जान लें। तीसरा कदम, अगर आपकी पिछली किस्त रुकी है तो BISP मरकज़ पर जाकर रिकॉर्ड चेक करवाएं। चौथा कदम, किसी नामालूम शख्स या एजेंट को पैसे, फ़ीस या चार्ज देने से गुरेज करें। हर बाकायदा अमल सरकारी मराकज़ या हेल्पलाइन के ज़रिए करें। ये चंद कदम आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करेंगे और आपको जदीद निज़ाम का हिस्सा बनाएंगे। अब नाज़रीन, हम बात कर रहे थे BISP के जदीद इक़दामात और नए निज़ाम की। एक अहम कदम जो BISP ने उठाया है वो है शफाफियत और निगरानी का निज़ाम। अब हर रकम का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से रखा जाता है। हर किस्त का डेटा मरकज़ी सर्वर में महफूज होता है। इससे धोखाधड़ी या गलत रकूम देने के इम्कानात तकरीबन सिफर हो गए हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि आया ये प्रोग्राम सिर्फ पैसे देने तक महदूद है या मज़ीद सहूलियात भी फराहम करेगा? जवाब ये है कि BISP की कोशिश है कि वो माशरती तरक्की के लिए भी इक़दामात करे। मसलन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, ख़वातीन के हुनर सिखाने के प्रोग्राम और बालगों के ग़िज़ाई प्रोग्राम भी शामिल किए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक हकीकी मिसाल देता हूँ। एक घराना जिसकी आमदनी सिर्फ 20,000 रुपये माहाना है, उनके बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल था। BISP की 4,000 की किस्त ने उनके अखराजात में तवाज़ुन पैदा किया। इसी रकम से बच्चों की फ़ीस और ज़रूरियात आसानी से पूरी हो गई। ये छोटा सा फ़र्क उनके ख़ानदान की ज़िंदगी बदल देता है। नाज़रीन, अब आते हैं डायनामिक सर्वे की अफादियत पर। इस सर्वे की मदद से वो लोग जो पहले मुस्तहिक नहीं समझे गए थे अब दोबारा अहल करार पाएंगे। इसी तरह जो लोग गलत तौर पर अहल दिखाए गए थे उनका डेटा दुरुस्त हो जाएगा। ये अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि सिर्फ वाकई मुस्तहिक अफराद को ही इमदाद मिले और कोई भी शख्स गलत फ़ायदा ना उठा सके। अब मैं आपको बताता हूँ किस्तों की तकसीम का तरीका। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि रकम मरहलावार दी जाए। इससे रश कम होता है और हर मुस्तहिक शख्स तक आसानी से पहुँचती है। नाज़रीन,
ये भी जान लें कि BISP सिर्फ पैसे देने वाला इदारा नहीं है, ये एक मददगार और तहफ़्फ़ुज़ी जाल है। गुर्बत ख़त्म करने वाला इदारा नहीं, बल्कि गुर्बत के असरात कम करने वाला इदारा है। अब मैं आपको कुछ अमली टिप्स बताता हूँ ताकि आप किसी भी मसले से बच सकें। 1. अपने CNIC की मियाद देखें और अगर ख़त्म हो गई हो तो फ़ौरन तजदीद करवाएं। 2. अपने नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स मालूम करें, 468 पर पैगाम भेजकर जान लें। 3. अगर आपकी किस्त रुकी हुई है तो BISP मरकज़ जाकर चेक करवाएं। 4. किसी नामालूम शख्स या एजेंट को पैसे देने से गुरेज करें। नाजरीन, ये छोटे इक़दामात आपके लिए बहुत मददगार होंगे। आप आसानी से जदीद निज़ाम के तहत रकम वसूल कर सकेंगे। अब मैं आपको एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ। BISP बंद होने वाला नहीं है। ना हमारे मुस्तहिकीन कहीं जा रहे हैं और ना ही ये प्रोग्राम रुकने वाला है। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम अफवाहों पर यकीन ना करें। ये प्रोग्राम आपका है, आपके ख़ानदान का है और हम सब के लिए मददगार है। आपको इसका एक वक्त दिया जा सकता है। नाजरीन, इस प्रोग्राम की मदद से लाखों ख़ानदानों का चूल्हा जलता है, बच्चों की तालीम जारी रहती है, ख़वातीन घर बैठे माली मदद वसूल कर सकती हैं। ये छोटे छोटे कदम मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करते हैं। अब मैं आपको आखिर में ये कहानी सुनाता हूँ। पिछले हिस्से में हमने बरसग़ीर के सांपों की मिसाल दी थी। जैसा कि हमने देखा, अगर निज़ाम दुरुस्त ना हो तो मसला बढ़ सकता है। BISP ने यही सबक सीखा और डिजिटलाइजेशन, शफाफियत और डायनामिक सर्वे के ज़रिए हर मुमकिन इक़दाम किया है। नाजरीन, इसका मतलब ये है कि आपको खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात अपडेट करें, हिदायत पर अमल करें और अफवाहों से बचें। BISP आपके साथ है, हम सब के साथ है। आखिर में एक अहम बात, आप सब मुस्तहिकीन को चाहिए कि वो अपने हकूक़ के बारे में जानें। BISP की हेल्पलाइन और मराकज़ हमेशा दस्तयाब हैं। किसी भी मसले में बिला झिझक राब्ता करें। आपका सुकून और फलाह हमारा मकसद है। नाजरीन, ये था आज का मुकम्मल तज्ज़िया और रहनुमाई। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई मालूमात आप तक पहुँचे। शुक्रिया नाजरीन, हम मिलकर इस सफ़र में आगे बढ़ेंगे, गुर्बत के असरात को कम करेंगे और हर मुस्तहिक घराने तक मदद पहुँचाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।